جو شان ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر دلشاد حسین قادری صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ ٹی وی کے آل ان آل ہیں، وہ یہ ان کے بھانجے ہیں جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جناب صاحبزادہ محمود ایاز محمود قادری صاحب فاضل بیرا شریف۔ میں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں، اور اب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں شہدائے کربلا کی یاد میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ ایاز محمود قادری صاحب۔ الحمد للہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی محترم محتشم صاحبزادہ حافظ اجاز حسین القادری زید مجدہ، عالم نبیل فاضل ذی احتشام حضرت علامہ پیر محمد ذوالفقار علی شاکر مد ظلہ العالی، میں آپ احباب کو اور انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل کے جملہ رفقا کو اور آپ کی ٹیم کو ہدیہ تبریک کے کلمات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر دین متین کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم کے علم و عمل میں، تقوی و ورع میں، صحت و سلامتی میں اپنی برکات نازل فرمائے، آمین آمین۔ ابتدائی کلمات کے بعد میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ محترم سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ بے مثل اور بے مثال عطا فرمائی ہے۔ بے شک کائنات کی جتنی فضیلتیں تھیں، جتنی بزرگیاں تھیں اور جتنی سرداریاں تھیں، وہ ساری کی ساری جمع فرما کے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور کو مہینہ ماہ رمضان کی صورت میں وہ عطا کیا جو تمام مہینوں کا سردار ہے، لیلۃ القدر کی صورت میں ایسی رات عطا فرمائی جو تمام راتوں کی سردار ہے، بے شک
कुरान की सूरत में ऐसी लारैब किताब अता फरमाई जो तमाम किताबों की सरदार है, और बेशक उम्मत भी ऐसी अता फरमाई जो तमाम उम्मतों की सरदार है। रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब को जनाबे अबू बकर जैसा सिद्दीक अता फरमाया जो तमाम सिद्दीकीन का सरदार है। जनाबे बेशक उमर फारूक जैसे फारूक अता फरमाए जो तमाम अदल करने वालों के सरदार हैं। हजरत उस्मान गनी जैसा सखी अता फरमाया जो तमाम सखियों का सरदार है, और मौला अली जैसा बहादुर अता फरमाया जो तमाम बहादुरों का सरदार है। और इसी तरह रब्बे दुल जलाल ने अपने हबीब को सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा सैयदा खातून जन्नत की सूरत में ऐसी अजीम बेटी अता फरमाई जो तमाम बेटियों की सरदार है। और अल्लाह ने हुजूर को हसन हुसैन की सूरत में इतने अजीम बेटे अता फरमाए जिन्हें अल्लाह ने जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया है। तो अलगर्ज कायनात की जितनी फजीलतें, जितनी बुजुर्गियां थीं और जितनी सरदारियां थीं, रब्बे कायनात ने अपने हबीब मुकर्रम को अता फरमाई हैं। मैंने खुतबा में जो आया मुकद्दसा के कुछ अल्फाज आपके सामने तिलावत किए हैं, उनमें रब्बे दुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए नबी मुकर्रम, आप ऐलान कर दीजिए और आप कह दीजिए, लोगों मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया, मैंने तुम्हें इस्लाम का रास्ता दिखाया, मैंने तुम्हें सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलाया, मैं अपनी इस सारी तबलीग के ऊपर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। और हकीकत भी यही है कि तबलीग उसी वक्त असर करती है जब वो हिर्स की ख्वाहिश से पाक होती है। जब तबलीग में हिर्स आ जाए, तमा आ जाए, लालच आ जाए, और जब तकरीरें बिकना शुरू हो जाएं, और जब नातों के सौदे होने लगें, और जब तिलावतों के बाव ताव होने लगे, तो फिर वाह वाह भी हो जाती है, नारे भी लग जाते हैं, मगर अहबाब उसके अंदर से असल की जो कुव्वत होती है उसको उठा लिया जाता है। तो रब्बे जुल जलाल ने कहा, ए हबीब आप ऐलान कर दीजिए कि मैं अपनी तबलीग के ऊपर तुमसे कोई अजर, कोई सिला, कोई बदला नहीं मांगता। हाँ, मैं तुमसे इतना जरूर कहता हूं, अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि जो मेरे अकरीबा हैं, जो मेरे करीबी हैं, तुम उनके साथ मवद्दत का रिश्ता कायम करो। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि जब हुजूर ने अपनी तबलीग के इवज में उम्मत से कोई दुनियावी अजर नहीं मांगा, तो फिर अकरीबा की मवद्दत भी ना मांगी जाती, अकरीबा की मोहब्बत का सवाल भी ना किया जाता, तो हुजूर ने उम्मत से अपने अकरीबा की मवद्दत का सवाल क्यों किया है? तो हजरात मुफस्सिरीन किराम इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से जो अकरीबा की मवद्दत मांगी है, इसमें हुजूर का कोई फायदा नहीं, इसमें हुजूर ने फायदा किया है तो अपनी गुनाहगार उम्मत ही का फायदा किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अकरीबा से मोहब्बत करो, तो इसमें हुजूर को कोई हाजत नहीं थी, इसमें फायदा है तो उम्मत का फायदा है, इसमें नफा है तो उम्मत का नफा है। और उम्मत का नफा क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, गोया उसने मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत कर ली, गोया उसने अपने रब से मोहब्बत कर ली, और जो अल्लाह से मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह उसको जन्नत के ऊंचे महल्लात में दाखिला अता फरमा देता है। तो पता चला कि अहले बैत के साथ मवद्दत का रिश्ता कायम करना, मोहब्बत का रिश्ता कायम करना, ये उम्मत की जरूरत है।
उम्मत हुजूर के अकरीबा से मोहब्बत का रिश्ता कायम करेगी तो इस मोहब्बत की सीढ़ी के ऊपर चलते हुए अल्लाह हुजूर की उम्मत को जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमा देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम में अपनी दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाहि व इतरती, एक अल्लाह की किताब कुरान छोड़ के जा रहा हूं, और दूसरा अपने अहले बैत की मोहब्बत को छोड़ के जा रहा हूं। और जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ रखोगे, लन तदिल्लू, तो मैं तुम्हें ये खबर दे के जा रहा हूं कि तुम उस वक्त तक हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। अब यहां सवाल पैदा हुआ कि उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत की फलाह के लिए तो कुरान ही काफी था, फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ अहले बैत की मोहब्बत का दर्स क्यों दिया अपनी उम्मत को? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए हजरात। एक होती है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। जब तक इंसान प्रैक्टिकल ना करे तब तक थ्योरी समझ नहीं आती। अगर कोई आपसे पूछे कि इस्लाम की थ्योरी क्या है, तो आप उसके सामने कुरान के सफहात को खोल दें और कहें कि ये कुरान इस्लाम की थ्योरी है। और अगर कोई पूछे कि इस्लाम का प्रैक्टिकल क्या है, तो उसे बोले मैदान करबला के अंदर हजरत इमाम आली मकाम ने जो अपना किरदार पेश किया है, उसे इस्लाम का प्रैक्टिकल कहा जाता है। कुरान ने ये थ्योरी पेश की कि वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस समरात। कुरान कहता है, ए लोगों, हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ देकर, कभी भूख देकर, कभी तुम्हारे माल कम करके, कभी तुम्हारे समरात कम करके, कभी तुम्हारी जानों को कम करके। ये कुरान की थ्योरी है। अब आए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूं। आज हम महफले शुहदाए करबला की इस खूबसूरत लाइव नशिस्त में हाजिर हैं, तो इसका प्रैक्टिकल हजरत इमाम आली मकाम ने मैदान करबला के अंदर करके दिखा दिया। हजरत इमाम आली मकाम कभी जनाबे अली अकबर का शहीद होता हुआ जिस्म अपने कंधों के ऊपर उठा के ला रहे हैं, कभी जनाबे अली असगर की लाश उठा के ला रहे हैं, कभी जनाबे कासिम का जिस्म ला रहे हैं, और कभी जनाबे अब्बास के कटे हुए बाजू ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हजरात, हमारे घर में जवान बेटे का जनाजा उठे तो बूढ़े बाप को होश नहीं रहती, 10 बंदे उसे सहारा देकर कब्रिस्तान ले जाते हैं। जरा मेरे इमाम आली मकाम का हौसला तो देखो, जरा उनकी जुर्रत तो देखो, जरा उनकी बहादुरी का अंदाजा तो लगाओ। हजरत इमाम आली मकाम अपने बेटों के जनाजे उठा रहे हैं, अपने भतीजों के, अपने भांजों के, अपने अकीदतमंदों के जनाजे उठा रहे हैं, मगर जुबान के ऊपर बेसब्री का एक जुमला भी नहीं है। बल्कि आपकी जुबान से क्या निकलता है? इमाम आली मकाम कहते हैं कि ए बारी ताला, मैंने माल भी तेरी राह में कुर्बान कर दिया, मैंने अपने बच्चों को भी तेरी राह में कुर्बान कर दिया, मना मैंने अपनी जान भी तेरी राह में कुर्बान कर दी। ए बारी ताला, हुसैन तेरी बारगाह में फकत एक ही इल्तिजा करता है, मौला हुसैन की इन सारी कुर्बानियों को कबूलियत की सनत अता फरमा दे। तो हजरत इमाम आली मकाम ने जो कुर्बानियां दी मैदान करबला में, हजरात किसी शायर ने क्या ही खूबसूरत जुमला कहा। शायर कहता है कि ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है। तवज्जो कीजिएगा इन अशार के ऊपर और इमाम आली मकाम की जुर्रत का और बहादुरी का अंदाजा कीजिएगा। शायर कहता है कि ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी फिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। तो हजरत इमाम आली मकाम ने मैदान करबला के अंदर क्या ही खूबसूरत कुर्बानी का जज्बा पेश किया है। और हजरात, इमाम आली मकाम का तारुफ क्या है?
आपका इंट्रोडक्शन क्या है। एक हदीस मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तुरक से आई है, मैं उसका खुलासा इख्तिसार के साथ आपके सामने अर्ज करता हूं। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा घर मस्जिद नबवी से जरा हट के था। मैंने अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान मुझे इजाजत दें, आज मगरिब और इशा की नमाज मैं हुजूर के पीछे अदा करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरात, आज मैं और आप नमाज पढ़ते हैं तो अपने इमाम के पीछे, अपने कारी के पीछे, अपने खतीब के पीछे, अपने पीर साहब के पीछे। ऐ सहाबा, आपकी अजमत पे कुर्बान जाएं। आप नमाज पढ़ते हैं तो किसी आम बंदे के पीछे नहीं पढ़ते। सहाबा नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के हबीब के पीछे अपनी नमाजों को अदा करते हैं। तो हजरत हुजैफा कहते हैं, ऐ मेरी वालिदा मुझे इजाजत दें, मैं आज मगरिब और इशा हुजूर के पीछे पढ़ना चाहता हूँ। वालिदा ने कहा, बेटा इजाजत है मगर वादा करके जाओ, जब हुजूर के पास जाओ ना तो हुजूर से अपनी बख्शिश की दुआ भी करवाना और हुजूर से मेरी बख्शिश की दुआ भी करवाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हुजैफा चलते हैं, हुजूर के पीछे मगरिब की नमाज अदा करते हैं। हजरत हुजैफा कहते हैं, हुजूर ने मगरिब की नमाज को अदा किया और फिर आप अपने जिक्र में मसरूफ हो गए। जिक्र से फारिग हुए तो जो वफ्द आए हुए थे हुजूर उनके साथ मुलाकात करने के लिए बैठ गए, हत्ता कि इशा की अजान हो गई। और मैं जो माँ से वादा करके आया था कि बख्शिश की दुआ करवाऊंगा, आपकी भी और अपनी भी, वो अभी मैंने बात हुजूर से नहीं की। हत्ता कि हुजूर ने इशा की नमाज पढ़ाई और इशा की नमाज पढ़ाते ही अचानक जल्दी से हुजूर अपने हुजराए नूर की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। हजरत हुजैफा कहते हैं, मैं भी हाथ बांधे बांधे हुजूर के पीछे जा रहा हूं और जब मैंने हुजूर को जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए देखा तो मैं परेशान हो गया कि अगर मैंने हुजूर को पीछे से आवाज दी तो ये भी बेअदबी हो जाएगी, गुस्ताखी हो जाएगी। और अगर हुजूर को अपनी बात भी ना बताई तो जो मां से वादा करके आया हूं मगफिरत की दुआ का, वो भी टूट जाएगा। जनाब हुजैफा कहते हैं कि मैं इसी कश्मकश में था कि मैंने क्या देखा कि अचानक हुजूर रुकते हैं और रुक कर बगैर पीछे देखे हुए हुजूर कहते हैं, हुजैफा हो मा हाजतु का कद गफर अल्लाहु लका वली उम्मिका। हुजूर कहते हैं, हुजैफा हो जाओ, अल्लाह तुम्हें भी बख्शे, तुम्हारी मां को भी बख्शे। बोलो क्या मांगने के लिए आए हो? अल्लाह तुम्हें भी बख्शे, तुम्हारी मां को भी बख्शे। हुजैफा मांगो, क्या मांगने के लिए आए हो? अल्लाहु अकबर। हजरत हुजैफा ने कहा होगा ना कि क्यों कहूं, क्या कहूं, ये अता वो अता चाहिए, क्या कहूं ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। हजरत हुजैफा ने कहा होगा कि हुजूर मैंने जो मांगना था मेरे लबों पे अभी आया ही नहीं, आपको अल्लाह ने इतना अता किया है कि आपने बिन मांगे ही मुझे अता फरमा दिया है, बिन मांगे ही मुझे अता फरमा दिया है। और फिर हजरत हुजैफा कहते हैं कि हुजूर मुस्कुराने लगे। मैंने अर्ज की, हुजूर मुस्कुराने की कोई खास वजह हो तो इरशाद फरमाएं। सुने अल्लाह के नबी का जो रुतबा है जरा उसको सुनिएगा और अपनी किस्मत के ऊपर रश कीजिएगा कि अल्लाह ने हमें अपने इमामुल अंबिया के गुलामों में शामिल फरमा दिया है। हुजूर मुस्कुराए तो कहा, ए हुजैफा इन हाजा मलिकुन लम यंज़लिल अर्द कत्तु इस्तअज़ना रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया। ए हुजैफा मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि ये तुम्हारे पास फरिश्ता खड़ा है, तुम इसे नहीं देख रहे, मैं इसे देख रहा हूं। और जब से ये जमीन और आसमान बने हैं ये पहली दफा मेरे पास आया है, पता चला ये रब का कोई खास पैगाम लेके आया है। हुजूर ये फरिश्ता क्या पैगाम लेके आया है? हुजूर कहते हैं कि ये दो काम करने के लिए आया है। पहला काम ये कि इसने अपने रब से इजाजत मांगी है, अल्लाह मुझे इजाजत दें, मैं तेरे हबीब की बारगाह में जाकर सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूं। इससे पता चला कि हुजूर की उम्मत में सलाम पेश करना इतना मकबूल वजीफा है कि रब के फरिश्ते भी अर्श से
जमीन के ऊपर आकर हुजूर की बारगाह में सलामी अकीदत पेश कर रहे हैं। और दूसरा काम हुजूर कहते हैं कि ये फरिश्ता मुझे बशारत देने के लिए आया है, वबश्शरनी बिअन्न फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना व इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया कि ये फरिश्ता अल्लाह की तरफ से मुझे बशारत देने के लिए आया है कि हुजूर, अल्लाह आपको बशारत दे रहा है कि अल्लाह ने आपकी प्यारी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है, और अल्लाह ने आपके बेटों हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। हुजूर कहते हैं कि ये फरिश्ता मुझे बशारत देने के लिए आया है कि मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरात, ये हदीस तो आपने सुनी होगी, मगर मैं थोड़ी सी इस पे आपके सामने वजाहत रखना चाहता हूं। हजरत ज़ी वकार, सरदार कौन होता है? जो अपने शोबे के तमाम लोगों में रुतबा ऊंचा रखता है। उलमा उसे सरदार बनाएंगे जिसका इल्म सबसे ज्यादा होगा, औलिया उसे सरदार बनाएंगे जिसकी विलायत सबसे ज्यादा होगी, कुर्रा उसे सरदार बनाएंगे जिसकी किरात सबसे ज्यादा होगी। अब हुजूर कह रहे हैं कि मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और बड़ी खास बात मैं अर्ज करने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। फरमाया मेरे बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जन्नत में जाएंगे नमाजी, पता चला हसनैन की नमाज सबसे आला है। जन्नत में जाएंगे सबर करने वाले, पता चला हसनैन का सबर सबसे आला है। जन्नत में जाएंगे तकवा इख्तियार करने वाले, पता चला हसनैन का तकवा सबसे आला है। हम हसनैन की शान क्या बयान कर सकते हैं? अल्लाह ने ये बशारत नहीं दी कि हबीब हमने आपके बेटों को मक्के का सरदार बनाया या मदीने का सरदार बनाया या सिर्फ अरब का या सिर्फ अजम का। ना ना, लोगों गौर से सुनो, अल्लाह ने अपने हबीब के इन दो शहजादों को इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है। फरमाया हबीब हमने इन शहजादों को जन्नती जवानों का सरदार मुंतखब फरमा दिया है। ये जन्नती जवानों के सरदार है। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि एक रात में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मुझे कोई हाजत थी, मुझे कोई जरूरत थी। पता चला कि आज फितना पैदा हुआ है कि नबी से मांगोगे तो माज अल्लाह शिरक हो जाएगा, नबी के सामने अपनी हाजत रखोगे तो ये इस्लाम के खिलाफ होगा। सहाबा का अकीदा ये है, सहाबा को जब भी जरूरत पड़ती थी ना किसी हकीम के पास जाते थे ना किसी तबीब के पास जाते थे, सहाबा जाते थे तो सीधे अल्लाह के हबीब के पास जाया करते थे। और फिर हुजूर अपने सहाबा को कितना नवाजते। अल्लाह का वादा है ना, अम्मस्साइला फला तनहर, ए हबीब आपके पास जो साइल भी आए आपने डांटना नहीं है, आपने झिड़कना नहीं है, आपने खाली वापस नहीं करना। अम्मस्साइला फला तनहर, आपके पास जो साइल आएगा आपने उसे नवाजना है, आपने उसे अता करना है। और सुभान अल्लाह, फिर हुजूर के पास जो आया है हुजूर ने उसको नवाजा है। तवज्जो कीजिएगा, मेरे हुजूर से किसी ने हाफिजा मांगा तो हुजूर ने उसे हाफिजा अता फरमा दिया। किसी ने हुजूर से कुरान मांगा तो हुजूर ने उसको कुरान का इल्म अता फरमा दिया। किसी ने हुजूर से अपना कटा हुआ बाजू मांगा, हुजूर ने वो दुरुस्त फरमा दिया। किसी ने बाहर निकली हुई आंख को मांगा, हुजूर ने अपना लुआब लाकर वो आंख को दुरुस्त फरमा दिया। अलगर्ज मेरे हबीब से किसी ने दुनिया मांगी, हुजूर ने उसे दुनिया अता फरमा दी। और जिसने मेरे हबीब से जन्नत मांगी है हुजूर ने उसे जन्नत भी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। और चरागे गोलड़ा कितनी खूबसूरत बात करते हैं
चरागे गोलड़ा कहते हैं अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग, और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। और भी कुछ मांग। वाह। और जिन लोगों को शक है, जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ और मांग। भी कुछ मांग। वाह। और उस दर पे ये अंजाम हुआ, उस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का, जोली मेरी बर बर के कहा और भी कुछ मांग, और जोली मेरी बर बर के कहा और भी कुछ मांग। क्या हजरत उसामा कहते हैं कि मेरी जो गरज थी हुजूर ने वो पूरी कर दी। अचानक मैंने क्या देखा कि हुजूर ने अपने ऊपर जो चादर और रखी है उसके नीचे कोई चीज हरकत कर रही है। मैं डर गया कि कोई चीज हुजूर को नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर आपकी चादर मुबारक के नीचे क्या है? तो हुजूर ने अपनी चादर मुबारक को खोला तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हुजूर की दाईं बगल में हजरत इमाम हसन मौजूद थे और हुजूर की बाईं बगल में हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने जब इस मंजर को देखा तो मैं खुश हुआ। अब जो हुजूर ने जुमले इरशाद फरमाए ना, पैगाम टीवी के तवस्सुल से आज मैं और आप पैगाम में शुहदाए करबला की इस खूबसूरत नशिस्त में शामिल हैं। मेरे ये इख्तितामी जुमले हैं और जरा इनके ऊपर तवज्जो कीजिएगा। आज हजरत अल्लामा जुल्फ़िकार साहब ने, हजरत हाफिज इजाज साहब ने ये जो लाइव सेशन का एहतमाम किया है, इसका मकसद पूरा हो जाएगा। सुने अहले बैत की मोहब्बत कितना अजीम सरमाया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए उसामा, हाजानी इब्नाया व इब्नाया इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, उसामा ये दोनों हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, और ये सिर्फ मेरे बेटे नहीं, ये मेरी प्यारी बेटी फातिमा के भी बेटे लगते हैं। और फिर हुजूर ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए बारी ताला मेरे इन दो शहजादों से मोहब्बत फरमा, व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और बारी ताला कयामत तक मेरा जो जो उम्मती मेरे इन शहजादों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं जो इनसे मोहब्बत करेगा मौला तो उनसे मोहब्बत फरमानी शुरू कर दे, तो उन्हें अपना महबूब बंदा बना ले। तो पता चला हजरत इमाम हसन की मोहब्बत, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत इस कायनात का इतना अनमोल खजाना है कि इस मोहब्बत से हुजूर की मोहब्बत मिलती है और हुजूर की मोहब्बत से अल्लाह का कुर्ब मिलता है और अल्लाह के कुर्ब से जन्नत के अंदर ऊंचा मकाम मिल जाता है। हजरात, मैं आखिरी हदीस अर्ज करके मैं अपनी मारूजात को खत्म करता हूं, इसलिए कि इस सेशन में और भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आखिरी हदीस सुन लीजिए। साहबा कहते हैं कि एक दफा हुजूर अपने हुजरा नूर से बाहर तशरीफ लाए तो हमने क्या मंजर देखा कि हुजूर के दाएं हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ था और हुजूर के बाएं हाथ में हजरत इमाम हुसैन का हाथ था। हुजूर ने अपने इन दोनों शहजादों के हाथों को पकड़ा और हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मन अहब्बा हाज़ैनी फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना औ कमा काल। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस मेरे उम्मती ने और मेरे जिस गुलाम ने मेरे इन दो शहजादों से मोहब्बत की, मेरे इन दो बेटों से मोहब्बत की, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं तुम्हें ऐलान कर रहा हूं कल कयामत के दिन अल्लाह उसको मेरी संगत अता फरमा देगा, अल्लाह उसको जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमा देगा। हजरात, हम नमाज पढ़ते हैं मगर नमाज के पढ़ने से सिर्फ जन्नत का वादा है। हम ज़कात देते हैं, ज़कात देने से सिर्फ जन्नत का वादा है।
ہم صدقہ خیرات عمرہ حج تلاوت کرتے ہیں، اس سے صرف جنت کا وعدہ ہے۔ مگر بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس پوری گفتگو کا ما حاصل جملہ ہے، اور اگر یہ جملہ آپ نے محبت سے سن لیا تو میری اس گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ حج تلاوت، یہ سارے عمل کرو گے تو فقط جنت ملے گی، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تم اپنے سینوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو پیدا کرو گے، ان کے ادب کو پیدا کرو گے، ان کی عقیدت کو پیدا کرو گے، ان کے احترام کو پیدا کرو گے، جب تم اپنے سینوں میں حسن و حسین کی محبت پیدا کرو گے تو اس محبت کا اجر یہ ملے گا، اللہ آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں پیارے مصطفیٰ کی سنگت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت اہل بیت سے جنت بھی ملتی ہے اور جنت میں نبی کی سنگت بھی مل جاتی ہے۔ میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، اس دعا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اے باری تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو اہل بیت اطہار کی محبت سے آباد اور شاد فرما دے۔ اللہ ہمارے ایمان کی بنجر کھیتیوں کو حسنین کریمین کی محبت سے ہرا بھرا فرما دے، اور انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ٹیم کو اسی اخلاص کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔